नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। मेघालय विधानसभा में आज उस समय हंगामा हो गया जब बजट सेशन के शुरुआत में राज्यपाल फागू चौहान ने हिंदी में बजट सत्र को संबोधित करना शुरू किया। राज्यपाल के भाषण शुरू होते ही पहली बार विधानसभा में चुनकर आए वॉइस ऑफ पीपल पार्टी के विधायक आर्डेन मिलर वसावमोइत ने इस बात पर आपत्ति जताई, जिससे राज्यपाल ने भाषण रोक दिया। इस पर मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने विधायक को समझाया कि राज्यपाल के संबोधन की कॉपी पहले ही अंग्रेजी में विधायकों को बांट दी गई है। इस पर वीपीपी विधायक ने शोर मचाना जारी रखा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दखल दिया, लेकिन वीपीपी विधायक मानने को तैयार नहीं हुए और सदन से वॉकआउट कर गए। हिंदी को लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में कई बार आपत्ति जताई जाती है। हालांकि केंद्र तथा राज्य सरकार ने हमेशा हिंदी को थोपने के आरोप को गलत बताया है। मेघालय विधानसभा में हुए इस हंगामे के बाद एक बार फिर हिंदी को लेकर बहस छिड़ गई है। हिंदी का विरोध इसे थोपने को लेकर हो सकता है, लेकिन राज्यपाल जैसा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सदन में बोलता है तो क्या इसका विरोध जायज है? आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता आर.के. समरजीत सिंह, शिलांग से प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, नागालैंड एनपीसीसी के महासचिव राजेश सेठी और असम हिंदी विकास परिषद के जुगल किशोर पांडे। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर नवरुण गोस्वामी भी मौजूद हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आज मेघालय विधानसभा में हुए हंगामे और इसके बाद की जो बातें सामने आई है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की, वो बातें हम आपको सुनाते हैं। Vehemently protest, the language being used as the address of the government. Because according to the rule, it has mentioned very clearly that the language to be transacted in the assembly should be in English. We are not a Hindi-speaking state, so we are not expected the government of India to send the Hindi-speaking governors to us because we cannot communicate. It is an insult to us. And let us not forget that the toil and sweat of the people and the leaders of the state for statehood is due to the attempt on the part of the government to impose Assamese as an official language. That was the main reason that made the people and the leaders to fight for the statehood. We've got a state on our own because of that issue. So we cannot allow this kind of imposition from Delhi. We need to ensure that our languages are promoted. Yes, it is important to ensure that we push our languages, but as I said, not with the mindset of hating somebody else or hating some other language. That does not strengthen our desire or our will to strengthen our own languages. That has to be done in a positive way, and we should ensure that this is done. And this kind of behavior that we saw this time in front of especially the governor, is something that the entire country will see. And and throughout the country, people will watch this, and it's a very embarrassing situation for us, and it's not healthy at all. Doesn't send a good reflection of our members and the way our house is run. So I would urge the members to not engage in such kind of scenes and create this kind of situations. There are many other ways in which we can raise the concerns, and there are many other situations in which we can raise the concerns, and honorable members should do that. And as I said, there'll be many situations in which some of our honorable members who are not able to speak, say, in Hindi, may have to go to Delhi and may have to meet honorable ministers in Delhi to get different support for their constituencies and for the state. Now, if you go there and then suddenly the minister says, if you don't speak in Hindi to me, I will not listen to you, you cannot enter my room. That's not the way things work. We have to realize, we have to be mature about the entire thing. And as I said, this is a global scenario, a national scenario. As I said, just because a person is not able to speak a particular language does not lead to the conclusion that they are disrespecting. तो आप सभी ने मुख्यमंत्री की बातें सुनी। मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा कि इसे अलग तरीके से इस बात को रखा जा सकता था। सदन में इस तरह का हंगामा ठीक नहीं है। जब राज्यपाल बोल रहे हो तब मुख्यमंत्री ने उस वक्त समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो सदस्य थे, विधानसभा सदस्य, उन्होंने नहीं माना और सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन आज की घटना हिंदी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। क्या हिंदी की इसी तरह से अवहेलना होती रहेगी और हिंदी को इसी तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा?
आज इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश सेठी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तब? मेरा मानना है कि चूंकि हम नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर इंग्लिश वाले लोग हैं और इंग्लिश बोलते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज भी नागालैंड की इंग्लिश है, मेघालय के भी इंग्लिश है, तो कम से कम जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो इस चीज़ को पार्टिकुलर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि पब्लिक से कन्वर्सेशन करने में इजी हो जाता है। अगर आप पब्लिक को एड्रेस करेंगे तो पब्लिक को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है उसका। तो पब्लिक को एड्रेस करने के लिए उसको समझना भी बहुत जरूरी है। पब्लिक जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो उस बात को पब्लिक तक पहुंचने के लिए पब्लिक को समझना भी आना पड़ेगा जी। तो उसी हिसाब से अगर जब मालूम है, ये सबको जानकारी है कि मेघालय और नागालैंड ये सब इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो इनको इंग्लिश जो जानने वाले जो गवर्नर होते हैं जो दूसरे प्रदेशों में है, तो उस टाइप के गवर्नर भी अगर दे दिया जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं है, हिंदी भी जरूरी है, आज की डेट में हिंदी जानना भी जरूरी है, लेकिन प्रदेशवासियों को पहले समझ में तो आना पड़ेगा, ये मेरा समझना है। जी। हिंदी जब बोल रहे हैं राज्यपाल तो क्या आपत्ति जरूरी थी, इस बात पर दूसरे जो हमारे आज के अतिथि हैं उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ आर.के. समरजीत हैं, भाजपा के प्रवक्ता आर.के. समरजीत, जब राज्यपाल हिंदी में बोल रहे हों या किसी अन्य भाषा में बोल रहे हों तो उस पर आपत्ति जताना कितना जायज है? देखिए जी, मैं एक छोटा सा आपसे उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी कहाँ में रहते हैं, हम लोग भारत के अंदर में रहते हैं, भारत की संविधान मानते हैं और भारत के अंदर में रहकर राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर चुके हैं। उसी को बोलने वाला चीज़ को अगर किनारा करके अपने मनमानी की बात कही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेघालय ये विभिन्न अंग है या नहीं है भारत का, सवाल उसी पे आता है। अगर हिंदी बोलने में इतना तकलीफ है तो हमारे संविधान के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में भी हिंदी जो लिखा है पैसा, क्या उसको भी फाड़ के फेंक दे क्या? सवाल वही है, एक राज्य के अंदर में संविधान के आधार पे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर कहा जाता है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। ऐसा वाला असेंबली के अंदर में बजट के आगे एक गवर्नर के स्पीच देना ये पारंपरिक है और संविधान में भी साफ साफ लिखा है। अगर इसमें हिंदी का प्रयोग करने में इतना जता रहा है तो मसला क्या है? क्या ये रेस्पेक्टेड 4 जो एमएलए है वो क्या संदेश देना चाहते हैं मेघालय की आम जनता को या भारत की पूरा 130 आबादी करोड़ के अंदर में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके अलावा हिंदी के अलावा अगर तमिल भाषा दे दिया तो भी इनकार कर सकता है क्या? क्योंकि मिजोरम में भी इंग्लिश वर्जन चल रहा है, खासतौर पे अभी भी मेरा मित्र कह रहा है कि नागालैंड में भी इंग्लिश चल रहा है, इसका मतलब मेघालय भी चल रहा है। लेकिन एक चीज इन लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इस राष्ट्रभाषा का दुरुपयोग करना कतई मैं इसको हर किस्म की चीज़ की लेकर मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, हिंदी बोलने में अगर तकलीफ है तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। जी रविंदर जी नवर रविंदर, देखिए ये जो जो डिबेट चल रही है, हिंदी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियली ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, बार बार ये कहा गया है, कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा है। ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली उसकी अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है जी, इस बात को लेकर विवाद रहा है। बिल्कुल। और अगर हम मेघालय की बात करें तो अगर आपको याद होगा रविंदर, पिछले साल भी जब सेंटर से इनफैक्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि क्लास 10 तक कंपलसरी इवन नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी को किया जाएगा और हिंदी टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, तो
ये एक तरह से प्रोटेस्ट जो है काफ़ी स्टेट्स में हुए थे अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका ये कहना था कि एज हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, कंपलसरी जो है एक कोट अनकोट इम्पोजिशन हो जाता है। ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है जो है रीजन में। अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक मेघालय, इवन नागालैंड, मिज़ोरम, कुछ हद तक मणिपुर। सो इस आज जो भी हुआ असेंबली में, इसके दो वर्जन हैं, एंड आई एम श्योर हमारे जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, वो भी ये मानेंगे कि दो वर्जन हैं। हाँ, शायद से ऐसे इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, शायद से हाउस का डेकोरम जो है वो मेंटेन करना चाहिए था, बट ये पॉइंट है मेघालय के लेजिस्लेटर्स का भी कि ये तो फैक्ट है कि हिंदी इज़ नॉट वाइडली स्पोकन इन मेघालय, तो क्यों ना सेंटर कोई ऐसे गवर्नर को दे जो उस लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके, जिससे हेल्प हो। जी, आज ज़्यादातर लोगों की यही मांग थी। मेघालय में जो भी विपक्ष के नेता हैं, मुकुल संगमा से लेकर दूसरे नेता भी यही कह रहे हैं कि कम से कम मेघालय, नागालैंड या दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा कम बोली जाती है और अंग्रेजी ज़्यादातर लोग बोलते हैं और समझते हैं, वहां पर राज्यपाल ऐसे भेजे जाएं जो कम से कम अंग्रेजी में बात करें, लोगों को समझाएं। तो ये लोगों की मांग आज उठी है, ये रही है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हिंदी पर बहस छिड़ी है। आखिर पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को क्यों ऐसा लग रहा है कि केंद्र थोप रहा है, और आज इसी पर बहस शुरू हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? दो बातें हो रही हैं, एक तो यहाँ के लोग राज्यपाल जो अंग्रेजी समझने वाले, बोलने वाले हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, और दूसरी ये कि उनको हिंदी भाषा से विधानसभा में आपत्ति है। हाँ, सुनाई पड़ रहा है जरूर। हाँ, आई एम श्योर ना। हेलो जी, सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी। ओके। पहले बात तो यही है, भारतवर्ष और या हिंदुस्तान एक बहुभाषी देश है। अलग अलग अंचल में अलग अलग भाषा का बात जारी चलते रहते हैं। मेघालय में जैसे खासी, गारो, जोइंतिया, उसके साथ इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है। इसका कारण यही है कि भारतवर्ष का जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को फंक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम करेंसी नोट में देखें तो शेड्यूल 8 का 22 भाषा में करेंसी लिखा जाता है। असमिया, बांग्ला, ओडिया से हिंदी, तमिल सब भाषा वहां पे है, आप देख लीजिए। तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज में अंग्रेजी और हिंदी आता है। जी, तो प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, आपको टोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, आप पूरी बात कीजिएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ वो एमएलए जुड़ गए हैं, आर्डेन मिलर जो हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एडिटर हमारे नवरुण गोस्वामी, उनसे सवाल करेंगे। जी नवरुण। Yes, welcome Mr. Basamot to Northeast Live. Well, whatever happened in the assembly today regarding Governor's speech in Hindi, well, Chief Minister Conrad Sangma has termed it as an embarrassing situation. How do you react to it, sir? It may be an embarrassment for him, but it is not for us and the people of the state. Because according to the rules of procedure and conduct of business, the Rule 28 clearly says that the language in the assembly should be in English. So, and being a state which is a non-Hindi speaking state, as you know, Meghalaya is not a Hindi speaking state, so the majority of population is not comfortable and does not understand Hindi language. Even myself, I'm not comfortable with Hindi language. So which is why I raised this objection, conveying the message to the governor that Meghalaya is not a Hindi-speaking state. So it would be better for the governor to address us in the language we understand, or English.
And whatever we do is the wish of the people, because this kind of step taken by the governor to address us in Hindi is again the sentiment of the people of the state. Yes, but what Chief Minister Conrad Sangma had to say is that the situation could have been handled better and that it was not deliberate on the governor's part to choose to speak in Hindi. He was speaking in Hindi due to limitations as far as language is concerned, and moreover, he also had the right to speak in the language he is comfortable in. Hindi is also one of the official languages. It may not be the national language, it is also one of the official languages, and since it is not a national language, again there is no question of imposition of a particular language in the assembly. And what Chief Minister Sangma feels is that things could have been handled better, especially keeping in mind the quote-unquote decorum of the House. You see, you have to also understand that the message that we convey in today's debate is that this should not be allowed to become a tradition. Because I was MLA in 10 years, this is the first time that I experienced, that the governor address will be addressed in Hindi. Also, there was kind of support from some of the ruling coalition MLAs. If I speak about Amparin Lingdor, Paul Lingdor, even they in a way said that, of course, it would have been better if the address of the governor was in English or was in a language that is widely spoken or understood in the state. So, some support for you from within the government ranks, isn't it? Most of the members, they subscribed and they supported in private that we need to send a message clearly, to the government of India that they should not, before they send the governor to the state, they should at least send a governor who could speak the language we understand. Mm-hmm. But end of the day, do you still think, Mr. Basai Ahmed, the entire situation could have been handled better, given that the governor actually had informed that he would not be comfortable in reading out the address, the speech in English, and also a copy of the speech was provided to each of the legislators? After having gone through the proceedings in few years, we could notice that this is nothing but an attempt, to belittle the state by the central government. The central government should have sent a governor who could speak English or the language we understand. Right? The state has been demanding for the inclusion of Khasi and Garo languages in the 8th schedule to become official language. But the government of India did not pay any heed at all till today, and instead choose to send these Hindi-speaking governors to the state. We have to look from that angle also. This is not the first time that we have a governor who could not speak in English, and it has become a precedent in the last 2-3 years. So will you also press for opposition unity on the matter and probably also try to get some of the ruling MLAs on board on this issue that you have raised today, that should be raised with the centre, which should, as you are saying, should appoint English-speaking governors for Meghalaya? We will be taking up this with the government of India also. After the session, the party will sit and we will be taking up this matter with the government of India. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Basai Ahmed, for joining us on Northeast Live. तो रविंदर जी हमने सुना कि जो एमएलए हैं जो ये मांग कर रहे थे विधानसभा में, जिन्होंने वॉकआउट किया इस मुद्दे पर, उन्होंने क्या कहा, लेकिन इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर
जो आज मेघालय में देखने को मिला, मेघालय विधानसभा में देखने को मिला, आखिर हिंदी क्यों ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि हिंदी को थोपा जा रहा है, और इसी का विरोध मेघालय विधानसभा में देखने को मिला। हमारे साथ जुड़े थे मेघालय विधानसभा के जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य आर्डेन मिलर बसावमोइत, और जिन्होंने अपनी बातें रखी, विरोध किया, और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली तक जाएंगे इस बात को मनाने के लिए सरकार को कि वो राज्यपाल ऐसा भेजे जो अंग्रेजी में अपना भाषण दें। जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी गेस्ट हैं उन्होंने ये बातें सुनी हैं, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर प्रसन्नजीत कुछ बातें कह रहे थे। हम चाहेंगे कि वो पूरी बात अपनी कर लें, उसके बाद फिर हम एमएलए के बयान पर आएंगे। मैं ये बात ही कह रहा था कि भारत की 8वें अनुच्छेद की संविधान की अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, और सभी भाषा हमारे राष्ट्रभाषा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में अंग्रेजी और हिंदी ऐसा प्रबंध है हमारे संविधान की धारा में। और मेघालय असेंबली में ये रूल 828 में तो एक कहा गया है कि अंग्रेजी में प्रोसीडिंग होगा। तो ये देखते हुए अभी हमारे राज्यपाल महोदय ने हिंदी भाषा में जो भाषण दिया था, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन का कोई तुरंत बंदोबस्त करना चाहिए था। आजकल ट्रांसलेटिंग डिवाइसेस मिलते हैं एवं पैरेलल ट्रांसलेशन हो सकता था। तो हम क्यों इस जो सेंसिटिविटी है इसको हम थोड़ा मूल्य ना दे, हमको ये मूल्य देना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष एक मल्टीलिंगुअल देश है, हमारे तरह तरह का भाषा है, सबके सेंटिमेंट है, उसको आदर करना हमारा उचित रहेगा जी। हिंदी राज्यपाल महोदय का मातृभाषा है, उसमें बात करने का उनका अधिकार है, ये अधिकार संविधान देते हैं। लेकिन बाकी लोगों का जो अपना मातृभाषाएं है, दोनों का बीच में संयोग और लिंक करने के लिए संयोगकारी भाषा भी हमको चाहिए, वो अंग्रेजी है नॉर्थ ईस्ट के लिए या पूर्व भारत के लिए। तो ये बात राज्यपाल महोदय जरूर समझते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल महोदय हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाते, एक शब्द अंग्रेजी बोल नहीं पाते बोल के एक इंप्रेशन तैयार हुआ है, शायद ये सही नहीं है। और सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए भाषा को लेके आज 75 सालों के बाद हमारे बीच में ऐसा विवाद एकदम निरर्थक है, मैं कहूंगा ऐसा विवाद करना नहीं चाहिए। बेवजह जी, ऐसा लगता है कि ये विवाद बेवजह खड़ा हो गया यहाँ पर, ये विवाद नहीं होना चाहिए था। जुगल किशोर पांडे, हम आपके पास आएंगे, लेकिन जो एमएलए से बातचीत हो रही थी, नवरुण से हम समझेंगे कि उन्होंने क्या बताया, क्या कहा। जी देखिए, कहना वही है कि जो मांग उन्होंने जो असेंबली में रखी थी वही दोहराया हमारे साथ बात करते हुए। जैसे हमने सुना कि जो लैंग्वेज हिंदी वाइडली नहीं समझी जाती उसका इस्तेमाल करना ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में, ये एक तरह से इंसल्ट है टू द पीपल ऑफ मेघालय। हालांकि चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा ने जो कहा कि जो असेंबली का डेकोरम है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। वीपीपी जो एक we can term it the newest regional party in Meghalaya, 4 सीटें जीती हैं डेब्यू पे, एंड they have come up with an excellent performance in this elections, और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते एज एन ऑपोजिशन फोर्स। उसने स्टैंड क्लियर किया है कि हम जो है इस मुद्दे को लेकर सेंटर तक जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाएंगे, और ये ट्रेडिशन नहीं बनना चाहिए, ये शुरू हुआ, ये ट्रेडिशन नहीं बनना चाहिए। सेंटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर इंग्लिश स्पीकिंग गवर्नर दिया जाए तो ये सारे इश्यूज़ नहीं होंगे और ऐसे ही रहना चाहिए, ये जो है। लेकिन इसमें जो है कॉनरेड संगमा ने भी जो कुछ रेलेवेंट इसमें जो इसका विरोध करते हुए बात किया है कि आप अगर अपनी भाषा को विच एवर, इट कैन बी एनी लैंग्वेज इन दिस कंट्री, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और भाषा को कंडेम करें, और ये तरीका नहीं है। ये जो है कॉनरेड संगमा ने ये मैसेज दिया है कि अपनी भाषा बीट, खासी, गारो हमें अपलिफ्ट करना है, आगे ले जाना है, 8 शेड्यूल का डिमांड है, सारे हमें पूरा करना है, लेकिन जो है एक कोट अनकोट हेट्रेड नहीं होना चाहिए, और इस तरह का बिहेवियर जो है असेंबली में नहीं होना चाहिए। एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। जो कॉनरेड संगमा का जो कहना था ये कि ये जो बिहेवियर था ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हिंदी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें उन्होंने भी एंटर नहीं किया, क्योंकि देखिए रविंदर, ये जो है एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड इशू है ये लैंग्वेज का, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसलिए हमने देखा कि जो रूलिंग कोalition के एमएलएज भी हैं वो भी जो है एक विटी रिस्पॉन्स था उनका
अपोज भी नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया। अगर हम पॉल लिंगडो को देखें तो उन्होंने भी कहा गवर्नर का पूरा अधिकार है हिंदी में देने का। लेकिन मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक लैंग्वेज जो मुझे भी ठीक से समझ में आए उस लैंग्वेज में जो है एड्रेस हो। अम्परिन लिंगडो की अगर बात करें, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैंने पहले भी रेज किया था और सेंटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम देखें कि एनपीपी के अंदर भी एक डिवाइड आ रहा है और रूलिंग जो कोalition है उसके अंदर भी एक हल्का सा डिवाइड आया है इस इशू को लेके। जी, जुगल किशोर पांडे, हिंदी को बेवजह विवाद में आना पड़ा और हम बार बार देखते हैं कि हिंदी को लेकर एक नफरत वाला रवैया देखने को मिलता है, बेवजह, बिना वजह। आज भी जो हिंदी को लेकर हंगामा खड़ा हुआ उसमें कोई बात नहीं थी। लोग चाहते जरूर हैं कि अगर हिंदी में राज्यपाल भाषण नहीं करते, अंग्रेजी में करते तो लोगों को समझ में आता। लेकिन जब राज्यपाल भाषण बोलते हैं, एक छोटा सा पेपर होता है जो राज्यपाल सरकार की ही बातें करते हैं, जो सरकार की बातें वो करते हैं वो अंग्रेजी में भी लिखी होती है, लेकिन उसी को वो हिंदी में समझा रहे थे। इस पर इतना बड़ा हंगामा हो जाना, इसे आप किस रूप से लेते हैं? नमस्कार। मैं कुछ कहने के पहले मैं आज जो घटनाएं हुई है उस पर मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ है, इसलिए कि हिंदी भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है और इसे 1949 में 14 सितंबर को विधान आपके सभा ने उसको ये किया था कि हिंदी जो है उस दिन से शुरुआत हुई थी और हिंदी को मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं होने से भी हमारी पहचान हिंदी है और मैं हिंदी को सम्मान करते हैं। हम किसी दूसरे भाषा को हम अपमान नहीं करते क्योंकि सभी भाषा हमारे राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्र के अंदर ही बोली जाती है, इसलिए हम सभी भाषा को सम्मान करते हुए हिंदी को अपमान करना और उसे उस तरह का जो शब्द को प्रयोग करना हमारे समझ में वह अच्छा नहीं है। फिर भी मैंने विधायक साहब को मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपने बातें रखी है और राज्यपाल साहब ने जिस तरह से हिंदी में उन्होंने भाषण रखा और मैं उनको बहुत आदर के साथ मैं ये करता हूँ कि हिंदी में बोलना कोई अनुचित नहीं है और उसके लिए ऑलरेडी पहले से व्यवस्था थी विधानसभा में और सभी को इंग्लिश में उसकी प्रतिलिपि दे दी गई थी, इसलिए उसमें इस तरह का मुद्दा उठाना भी कोई माने अच्छा नहीं था। फिर भी लोग उठाने के लिए उठाते हैं, लेकिन इस तरह के बात बोलना कि यहाँ पर जो है गवर्नर साहब ने इस तरह के जो है कोई असंवैधानिक शब्द बोले हैं, उन्होंने हिंदी में बोला, ये हिंदी में बोलने का बोलने में उनका कोई ये नहीं है। और हमारे जो वर्तमान व्यवस्था है, पूरा जो राष्ट्र को पूरे विदेश में भी हिंदी भाषा के रूप में भारत को कहा जाता है कि हिंदी जो है यह एक राष्ट्र भाषा के रूप में हमें देखा जाता है और हमारी सम्मान भी उसी दृष्टिकोण से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय ने जो कहा वह कोई अनुचित नहीं है और विधायक साहब ने भी जो कहा है मैं उन्हें भी सम्मान करता हूं और हमें भाषा को लेकर आपस में किसी तरह का कोई विवाद होना उचित नहीं है, क्योंकि राजेश सेठी आप हमको सुन रहे हैं, जो बातें हो रही हैं आपके पास पहुंच रही हैं। जो आज मेघालय में देखने को मिला, मेघालय में हमने देखा कि हाल ही में चुनाव हुआ है और चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वहां असमिया बोलकर प्रचार किया और पश्चिम बंगाल से तृणमूल के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता आए थे उन्होंने बांग्ला बोलकर प्रचार किया। जब चुनाव प्रचार अलग अलग भाषाओं में हो सकता है तो मान्यता प्राप्त हिंदी में राज्यपाल भाषण दे तो क्या आपत्ति जायज है? इसमें आपत्ति उस तरह से नहीं है, आप जिस भाषा में बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन आपके साथ ट्रांसलेटर एक होना चाहिए जो प्रदेश की भाषा को समझ सके। अब प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी नहीं उसमें करेंगे ट्रांसलेट तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं? पब्लिक को जानना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उस प्रदेश के सबसे महामहिम है, आप महामहिम राज्यपाल है उस प्रदेश के, पर अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते अंग्रेजी में या उनकी अपनी भाषा में तो कैसे वो गैप होगा वो और बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो भारत सरकार की
सोच की बात है कि उनको उस तरह के लोग भेजने चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके, प्रदेशवासियों से ठीक से मेल मिलाप हो सके, तो उसके लैंग्वेज में बात करना, उनको समझना, उनके कल्चर को समझना, तो तभी तो समझ में आएगा कि क्या है नॉर्थ ईस्ट और क्या है बाकी प्रदेश। क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पूरा यूनिक है, यहाँ का कस्टम कल्चर सब चीज अलग है, तो उसको मेल मिलाने के लिए आपको उनके साथ रहने के लिए उनकी कम्युनिकेशन तो जरूरी है। तो कम्युनिकेशन ही, अब आप बोलते हैं ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद नहीं बनना चाहिए, विवाद तो बन चुका है ना, इसीलिए तो बना है विवाद। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसे जानबूझकर भी हवा दिया जा रहा है, विवाद को खड़ा किया जा रहा है? नहीं, जानबूझ के नहीं, ये तो भाजपा की सोच की बात है ना। आप समझ सकते हैं भाजपा क्यों थोपना चाहती है। ये धीरे धीरे करके एक एक करके अपना गढ़ को, मतलब वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन लोग लागू करना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे आएगा तो नॉर्थ ईस्ट में, तो ये तो उसी की एक कड़ी है। तो ये जानबूझ के हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं गवर्नर साहब को इसमें दोष नहीं दे सकता। मैं दोष दूंगा भारत सरकार को। हमारे साथ प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब हिंदी में कोई बोला हो। प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, क्या ये पहली बार है जब मेघालय विधानसभा में कोई राज्यपाल हिंदी में बोला हो या कोई सदस्य हिंदी में बोला हो? नहीं, प्रॉब्लम यही है कि मेघालय में विधानसभा की भाषा रूल 28 के तहत केवल और केवल अंग्रेजी है, ये आपको समझना चाहिए जी। तो इसलिए राज्यपाल महोदय को ये बात मालूम है, ये नहीं कि राज्यपाल महोदय अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, राज्यपाल महोदय अंग्रेजी जरूर बोल सकते हैं। तो उसको वो बोलने में क्या आता था। और ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, पूरे देश में एक भाषा तो हो नहीं सकता है ना, अंचल विशेष में अलग अलग भाषा है, और हिंदी भाषा का जो इम्पोर्टेंस है वो भी छोटा नहीं होता है कोई हिंदी नहीं बोलने से। ऐसा फॉर्मल फोरम में आप ऐसा भाषा में बोलिए जिसमें ब्रिज लोगों में संपर्क बांटते हैं, कमते नहीं है, ऐसा भाषा में बोलना चाहिए। हिंदी में बोलने में जहां में उल्टा प्रभाव प्रतिक्रिया होता है, वहां हिंदी बोलने का क्या जरूरत है, ये मैं समझता नहीं हूं। इसमें मेरा सांस्कृतिक तौर पे मैं देखता हूं कि भारत में अलग अलग गोष्ठी, अलग अलग भाषाओं को एक जगह करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत अच्छा ब्रिजिंग प्रोसेस होना चाहिए। वो अंग्रेजी से अच्छा होगा पूर्व भारत में या दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में वो हिंदी में होगा। तो इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ये मान लेने से लोगों को एक भाषा से दूसरी भाषा के प्रति अलग तरह का सम्मान रहेगा, वो सम्मान को हम नष्ट ना करें, ये लार्जर इशू है। और मेघालय असेंबली में तो रूल एक ही है कि अंग्रेजी या खासी में या गाड़ों में या जयंतिया में वहां पे प्रोसीडिंग चलेगा, ये रूल है। देखिए रविंद्र, इसमें हिंदी का बात आता नहीं। डॉक्टर विश्वास, जस्ट टू ऐड, ये हम ये भी नहीं कह सकते कि सेंटर जो है एक भाषा को इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है हमारी, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट किया जाएगा, हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोशन बिल्कुल किया जाएगा। हाँ, कुछ देर पहले हमने शो में कहा था कि बेवजह जो है हिंदी को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसको बेवजह नहीं मानता रविंदर। बहुत सारे सेंसिटिविटीज़ जो है इससे जुड़े हुए हैं, और इसलिए जो एक इसकी जो है दो साइड्स है, और दोनों साइड्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा क्यों ये विरोध हुआ, और जो फिर चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा ने कहा, दोनों में ही दोनों साइड को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक लेजिस्लेटर है जो कह रहा है कि ये जो भाषण हो रहा है, स्पीच हो रहा है, एड्रेस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और शायद से मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है, जनता जो है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा का ये कहना है, ठीक है, लेकिन ये जो है डेकोरम ऑफ द असेंबली हमें मेंटेन करना है, इस तरह से हम इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते, इस तरह से अपोज नहीं कर सकते। बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बोथ आर राइट इन देयर ओन स्टैंड्स, और ये दो साइड है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सेकेंडली, जैसा मैंने कहा पहले, ये जो भाषा की जो हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ये एक मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड इशू है। वीपीपी जो एक पार्टी है, रीजनलिज्म पे राइड करके, रीजनल सेंटिमेंट्स पे राइड करके जो है असेंबली में आई है, 4 सीट आए हैं उनके। सो क्लियरली ऐसे एक इशू में वंस अगेन दे विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू रेक दिस अप, एन इशू विच द वीपीपी नोज की जो है जनता को जो एक सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं, एंड इट मे स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द पीपल। सो इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं रविंदर, और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है।
सोल्यूशन ये है कि इसको थिंग्स हैव टू इवॉल्व एंड इट हैज़ टू बी अ नेचुरल प्रोसेस। हम ये नहीं कह सकते कल से यहाँ सिर्फ इंग्लिश होगा, कल से यहाँ सिर्फ हिंदी होगा, कल से यहाँ सिर्फ असमिया होगा। इट हैज़ टू बी अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ हम लोगों को थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है इसको देखिए। हम कह सकते कि हिंदी जो है नॉर्थ ईस्ट में इन स्टेट्स में नहीं बोला जाता, नहीं समझा जाता, लेकिन ये भी फैक्ट है रविंदर कि आप अगर मेघालय से आसाम आए, आसाम से अरुणाचल जाए, अरुणाचल से नागालैंड जाए, द फर्स्ट लैंग्वेज जो हम हिंदी आज होती भी बात करते हैं वो हिंदी होती है, अंग्रेजी नहीं होती। लेट्स जोड़ने वाली भाषा, जोड़ने वाली भाषा जी। हिंदी, चाहे वो टूटी फूटी हिंदी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के वर्जन का, स्टेट वर्जन का हिंदी हो, लेकिन हिंदी में ही लोग बात करते हैं, ये भी सच्चाई है। तो इसको कैसे हम जोड़े लोगों को विदाउट मेकिंग देम फील कि इम्पोज किया जा रहा है, ये जरूरी है, एंड दैट इज द नीड ऑफ दैट। बिल्कुल। आगे क्या होगा, यह मेघालय में क्या हिंदी को लेकर बहस होगी या इसका क्या समाधान निकलेगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार और वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हिंदी पर क्यों है विवाद और आगे क्या होगा इसका समाधान, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में क्यों हिंदी को लेकर विरोध हो जाता है, आखिर वो क्या कारण है। हमारे साथ आर.के. समरजीत हैं, भाजपा नेता। आर.के. समरजीत, हिंदी एक तरह से जोड़ने वाली भाषा है। पूर्वोत्तर में ही कई राज्यों के लोग एक दूसरे से हिंदी में बोलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम कई जगहों पर देखते हैं, जैसे सदन असेंबली हो गया, विधानसभा हो गया, वहाँ पर अगर कोई हिंदी बोलता है तो इसका विरोध देखा जाता है। गोस्वामी जी, मैं पिछले आधा घंटा आप लोगों के जो निर्णय सब सुनते आ रहा हूँ, लेकिन हम सबसे पहले बाकी हिंदी विंदी को छोड़ के पहले ये आना चाहिए, हम लोग भारतवासी है, हिंदुस्तान में रहने वाला है। 75 साल हमारे आज़ादी की महोत्सव में हिंदी की भाषा प्रयोग करके जो लिखा है, कुछ लोग हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, टूटा फूटा होगा, और लेकिन चलने वाला भाषा तो हिंदी है। मैं अंग्रेजी के सवाल नहीं करता हूँ। आज़ादी हो गया 75 साल, फिर भी उसके पीछे पीछे आने के बजाय अपने मातृभाषा को साकार करने के लिए हम लोग जुगत करना पड़ेगा, कंधों से कंधा मिला के बोलना पड़ेगा। इसमें अगर कोई आपत्ति है तो ये इन लोगों की बात है, लेकिन हम लोग पूरा यूनिक होकर वहाँ में जो हो रहा है, तमिलनाडु में भी हिंदी अभी चलने लगा है, केरला में भी चलने लगा है, मेघालय में भी, यहाँ तक कि आम आदमी और आम जिंदगी में खासिया हो, जैंतिया हो या गारो हो, अंग्रेजी की भाषा में चलता है या हिंदी की भाषा में चलता है, वो देखा जाएगा तो मामला दूसरे तरफ चला जाएगा। मेरा तो यही मानना है। हम इस धरती में पैदा हो गया है, 75 साल हमारा आज़ादी है, और हिंदी को सभी लोग बोलने के लिए कोशिश भी कर रहा है, उसको उजागर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये वहाँ मेघालय का जो अनेक भाषाओं को नकार करे, ये बात तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, दैट इज़ माय ओपिनियन, हिंदी बोलने में अगर इतराज़ है तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ये तो लोग अभी भी आप जिक्र कर रहा है, बाकी का जो 4 MLA मेरा जिगरी दोस्त, वो दिल्ली से आके इसके बारे में ये समझाने के लिए वहाँ जाएगा बोला था। ये किस आधार पे जाएंगे और किस भाषा में बोलेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी वहाँ जाके जाना है तो कम से कम हिंदी तो वो भी बोलेंगे, मुझे पक्का है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी मिक्सअप जरूर करेगा। तो इतना सुंदर भाषा को क्यों ये इकरार कर रहा है भाई, ये तो मुझे समझ की बाहर है। ठीक है, सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए, और सरकार की यही मंशा है। सरकार ये बार बार कहती रही है कि जो रीजनल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उनको भी
बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें सभी भाषाओं को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें अगर हिंदी भी बोली जा रही है तो उसको मिलाकर ही चलना चाहिए। और हिंदी ज़्यादातर लोग समझते हैं, कम से कम एक दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ के लोग एक दूसरे को हिंदी बोलकर संबोधित करते हैं और समझते हैं। जुगल किशोर पांडे हैं जो असम हिंदी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। जुगल किशोर पांडे, हिंदी को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके ऊपर में किसी का एतराज़ नहीं है। फिर भी कुछ हमारे जो अभी हमने देखा, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदी थोपना चाहता है। इस तरह का हम लोग का भावना नहीं है। हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ और एक देश एक निशान और एक संविधान के आधार पर जो है भारत को देखते हैं। और भारत जो है, भारत में अधिकतर संख्या में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को सम्मान करना हमारा हम सबका माने वह अधिकार है और हमें हिंदी बोलना चाहिए। हम किसी दूसरे भाषा को हम अपमान नहीं करते हैं। मुझे ये नहीं कहे कि हम दूसरा भाषा नहीं माने अपमान करेंगे, चाहे उनसे नहीं बोलेंगे, हम उन्हें भी सीखना चाहेंगे, क्योंकि भाषा सीखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज हमारे जो असम के जो मुख्यमंत्री जी है, वो इतने सुंदर, इतने खराटेदार हिंदी बोलते हैं। आज पूरे भारत में घूमकर जो हिंदी में भाषण देते हैं, ये कितना हम सबको, हमारे भारतवासियों के कितना गौरव की बात है जी। और ठीक है, जहाँ तक हिंदी के विकास का सवाल है, ये बात जरूर है कि जब पूर्वोत्तर के नेता हिंदी में बोलते हैं, चाहे वो किरण रिजिजू हो, रंजन सिंह हो, चाहे हिमंत विश्व शर्मा हो, ये लोग हिंदी में बातें करते हैं। आज केंद्रीय मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल है, रामेश्वर तेली हैं, ये सारे लोग हिंदी में बोलते हैं और इनकी बातें भी सुनी जाती है। और लोग पहचानते हैं कि पूर्वोत्तर के नेता भी इतने अच्छे हैं, वो बातें करते हैं पूरे देश भर की, तो इससे पूर्वोत्तर का भी सम्मान बढ़ता है। लेकिन फिर जहां मेघालय की असेंबली में जो घटना हुई है और मेघालय की असेंबली की जो 28 नंबर पॉइंट की जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ज़रूर आगे चलकर इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रसन्नजीत विश्वास, आपके पास फिर आते हैं। जहाँ तक मेघालय का सवाल है, विधानसभा में बात करने का, बोलने का, अगर इस तरह का नियम है तो क्या इस पर बात पहले नहीं हो सकती थी या अब नहीं हो सकती है? नहीं, वो तो मेघालय का असेंबली तय करेगा ना। मेघालय का असेंबली अभी तक जो रूल में तय किया है वो अभी तक चलना पड़ेगा। अभी राज्यपाल महोदय का ये रूल मालूम है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल महोदय अंग्रेजी बोल नहीं पाते या जानते नहीं है, ऐसा भी नहीं। तो इसके कारण ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया, देखिए किसी एक भाषा को प्राधान्य देते हुए उसका डोमिनेंस का बात करना ठीक नहीं है। सब भाषा को इक्वल दर्जा मर्यादा हमको देना पड़ेगा। और अंग्रेजी कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। भारतीय लोग ने अंग्रेजी को इतना अपनाया कि वो भारतीय भाषा बन गए हैं। ग्लोबली भारतीयों का बहुत एडवांटेज है, चाइनीज जापानीज से ज्यादा एडवांटेज हमारे है, क्योंकि हम अंग्रेजी बोल पाते हैं ग्लोबली। तो ये जो हमारे एडवांटेज है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको एक समन्वय करना पड़ेगा। किसी एक भाषा से समन्वय नहीं होता है। समन्वय के लिए दिल खोल के सभी भाषा को अपनाना पड़ेगा। ये जो भावना है उसको आगे सामने करना मेघालय या भारत की दूसरे प्रांत के लिए भी अच्छा रहेगा, ये मैं सोचता हूँ। जी, राजेश सेठी जी, आखिरी प्रतिक्रिया होगी, हमारे पास समय की कमी है। आप इसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति अगर महामहिम बन जाए तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो है नहीं इसमें। अब क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, ये सब अगर प्रधानमंत्री जी और मोदी जी के वहां से अगर डायरेक्टिव आएगी तब तो फिर कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हर तरह के लोग हैं, हिंदी भी बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ भाजपा के तेंजे निम्नालोंग प्रेसिडेंट बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि असेंबली में थोप दी जाएगी। तो वो थोपना नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसलेटर रख लेते तो कोई विवाद नहीं होता। ट्रांसलेटर नहीं है बोल के, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दे दी
इन राइटिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन वो लिमिटेड लोगों के पास ही रह गई। लेकिन जो भाषा जो स्पीच जाती है वो तो पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में जाएगी, तो जो बोल रहे हो तो उसी हिसाब से जाएगी, तो समझने वाले नहीं समझ पाएंगे ना। जी। और कोई आपत्ति किसको है? हिंदी से किसको आपत्ति हो सकती है? ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए। जुगल किशोर जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, जल्दी से बोलिए, समय समाप्त हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ जी। कि जिस तरह से राजेश जी ने इस तरह की बात बोले हैं कि मैंने केंद्र को इस तरह के डिसीजन लेना चाहिए, केंद्र को समझ है किस तरह क्या डिसीजन लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जो है आज पूरे देश से लेकर विदेश में उनका जो मान सम्मान जो चल रहा है, उसके ऊपर में आप किसी तरह का जो भाषाएं बोलते हैं, यह आप सबकी मानसिकता का कमी है। क्योंकि देखिए, यह जो है ये भारत सबका लिए है, और भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब भारतवर्ष के अभिन्न अंग है, और उसमें बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन गवर्नर साहब ने हिंदी में अपना भाषण पढ़ा है तो इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी कोई अछूत भाषा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरफ से बातें हमने आज दर्शकों को सुनाई है कि हिंदी को लेकर जो एक तरह से विवाद खड़ा हुआ, तो इस पर दोनों तरफ की बातें क्या हैं और क्या होती तो ये विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन आज इस कार्यक्रम में जो बातें हुई हमें लगता है सार्थक हुई है। इस कार्यक्रम में इतना ही समय था और समय की इजाज़त नहीं है। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।